स्टूडेंट नाम से हमने एक क्लास बनाई और उसका एक ऑब्जेक्ट को हमने क्रिएट करा S1 के नाम से, ठीक है। इसको हमने यहाँ लिखा, ये किस लिए यूज होता है, मैंने कल आपको बताया था ये किस लिए यूज होता है, न्यू कीवर्ड किस लिए यूज होता है। To initialize. No, not initialize. You are using the new keyword for the use to memory allocate, is used to memory allocate. Okay, Okay, sir. it's a very important question. New keyword, what is the purpose of new keyword? New keyword is also used to Memory allocate. memory allocate, and this is a class and this is the object, and object name is to be find any name. You have to choose for find any name, S1 S2 A B C D, anything you have to use anything. Okay, new student. So this is a field, this is a field, and this field to initialize the main method s1.id, and you have to use suppose you are using the 10, yeah, as well as 100. Okay, so s1 dot name your suppose Ram Kumar. Okay, so this is a string value, so you are using the string value, you are use the double quotes. Yes, sir. Okay, so output is 100 and Ram Kumar. Okay, so this is the very simple thing. You are using the class and object because only two fields variable are using, and after some time you are using the field values to initialize the main method. Okay, okay student. Yes, sir. Okay, so last time have to discuss about the rectangle. So is properly understood for the class rectangle. You are using the void insert length breadth, and after some time you are using the calculate area, and you after some time you are using the main method rectangle r1 equal to new rectangle, and r1 dot calculate area and r1 dot length into breadth. So this topic is very clearly understood or not? Sir, understood. Sir, I made the program you told me to make yesterday about rectangle and square. Last time I'm dictate the some programs for the homework purpose. So you have to done for homework. Yes, sir. So please check. So please send the yeah, please see the homework. Sir, should I switch on my camera to show you the homework? So this is my camera. You have to open the your camera, and I'm checking the your programs. Yes, yes. Okay. This is a class rectangle length breadth, and p is a parameter. Okay. Perimeter. Okay, okay, and public static void main rectangle r equal to new rectangle r dot l equal to 50 and r dot b equal to 30. R dot b length 2 multiply l plus b system dot out dot println. हाँ, ये हो सकता है, आपने इसमें लास्ट में जाके पेरीमीटर को इनिशियलाइज कर दिया। गुड। एंड और दिखाइए, एरिया ऑफ स्क्वायर नहीं बनाया? बनाया ऐसे देखिए, दिखाइए। स्क्वायर int l area. So okay, सर थोड़ा सा शॉर्ट लिखिए था। understood. Square s equal to new square
एस डॉट एल नहीं, एस डॉट नहीं लगाया आपने। सॉरी सर। एस डॉट एरिया, गुड। सर इज आपने इट करेक्ट? स्क्वायर के आगे भी एक कॉलन नहीं लगाया, स्क्वायर के आगे आपने कॉलन नहीं लगाया। यही चीज तो आपको चेक करनी है। इसमें हमने कितने ओपन लिए हैं कर्ली ब्रैकेट, ओपन कर्ली ब्रैकेट कितने लिए हैं, जितने हम कर्ली ब्रैकेट ओपन लेते हैं उतने ही क्लोज करते हैं इसको। न्यू स्क्वायर से आगे, न्यू स्क्वायर से आगे जो ब्रैकेट लगा हुआ है ना, उसके आगे आपने कॉलन नहीं लगाया, सेमी कॉलन नहीं लगाया। ये हमें चीज चेक करनी है इसमें। ओके ओके गुड। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या था आपका, मुझे बताएंगे? सर टॉपिक था सर इंट्रोडक्शन टू जावा था। इंट्रोडक्शन टू जावा। ओके। अच्छा, जावा का नाम कैसे आया, मालूम है आपको? जावा ही नाम क्यों पड़ा इसका, मालूम है इसके बारे में? नो सर। देखिए, जावा से जो पहले का नेम था ना, वो नेम था हमारा ओक, इसे ओक बोलते थे। और ये ओक एक नेशनल ट्री है यूएस का, यूएसए का एक नेशनल ट्री है, ठीक है। तो जो इसका डेवलपर है, ठीक है, उसने इसको सोचा कि मैं इसको नेम चेंज करके देखता हूँ। तो इंडोनेशिया में, सॉरी, हाँ, इंडोनेशिया के पास एक आइलैंड है, उस नाम, उसके नाम, उस आइलैंड का नाम जावा है। उस आइलैंड का जो नाम है वो जावा है, ठीक। और वहां पर कॉफी का प्रोडक्शन होता है, उस आइलैंड पे कॉफी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। जब आप कभी जावा जावा का लोगो देखेंगे, अगर आप इमेज पे जावा का लोगो देखेंगे, तो जावा का जो लोगो है ना, वो कॉफी डिजाइन पे है। एक कप बना होगा, एक कप होगा, टी कप होगा, उस पे उसके एवोपोरेट हो रहे होंगे, तो वो एक कॉफी का डिजाइन है। तो वो कॉफी का डिजाइन उन्होंने असल में वहां से लिया है। क्लियर है? यस सर। यस तो सर। आप, अगर आपसे कोई हिस्ट्री पूछता है तो आपको इसको ये बताना है कि इसका जावा का नाम क्यों पड़ा। क्योंकि जावा का नाम वहां से पड़ा क्योंकि एक यूएस में ओक नाम से इसको पहले बोलते थे, ओक, लेकिन उसको नाम को चेंज कर दिया गया, फिर इसका नाम जावा रखा गया। ओके। यस सर। तो हम इंट्रोडक्शन जावा करते हैं स्टार्ट। उसमें आपके नोट्स वगैरह लिखवाए स्कूल में इसमें? नहीं सर, वो अभी स्कूल में बुक से नहीं चल रहा है, अभी सिर्फ ऐसे ही बिल निकलवा रही, जैसे स्लैब मेथड से बिल निकलवा रही है, तो वो सब में डाउट हो रहा है। अभी मैम बुक पे भी नहीं आई है, अभी बेसिक्स ही मतलब बोल रही है कि स्लैब मेथड हो गया, फिर डिस्काउंट और टैक्स ये सब हो गया निकालने का, प्रोग्राम्स भी थे। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ये तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इसमें यह है कि आप बस सिलेबस मुझे बताते जाएंगे, मैं आपका पूरा कंप्लीट कर दूंगा। मंथ वो 2 मंथ में पूरा सिलेबस फिनिश हो जाएगा। इतना टिपिकल सिलेबस नहीं है। अभी एक लड़की पढ़ भी रही है, आपके करने के बाद एक लड़की पढ़ती है, उसका मैंने लगभग 80-70% कंप्लीट कर दिया है। आपका हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो स्टार्टिंग करते हैं हम जावा की प्रोग्रामिंग से, ठीक है। उसमें यस आपको, या हम इसमें ये क्लास और ऑब्जेक्ट तो हम लिखवाएंगे, लेकिन उससे पहले यह है कि आपको थोड़ा सा इसका क्लियर अंडरस्टूड होना चाहिए कि किस तरीके से आप इसको करेंगे, यानी किस तरीके से इसको इनिशियलाइज करेंगे, ये करना है, ठीक है। ओके सर। इसमें इसमें वो नहीं चल रहा, नेट वाईफाई नहीं चल रहा, क्या बात है? वो चल ही नहीं रहा। इसका ओपन कर लिया ना वो तो स्पॉट, स्पीड इसकी बहुत हल्की आ रही है ना। हेलो, यस सर। देखिए, इंट्रोडक्शन टू जावा, कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए जो आपको यूज आएंगे। मैं आपको जो मैंने लिखा बोला है उसको समझ में आ जाएगा। इंट्रोडक्शन टू जावा। जावा वाज डेवलप्ड बाय
Java was developed by James Gosling. James, James, James Gosling. Yes. Java was developed by James Gosling Yes, at, sir. at Sun Microsystem. Java was developed by James Gosling at Sun Microsystem Yes, sir. in the year of 1995. Yes, sir. Okay, it is a simple Yes. programming language. It is a simple programming language, comma, Java makes writing, compiling, and debugging. Java makes writing, comma, compiling, and debugging programming easy. हो गया? Yes, sir. Makes writing, compiling, and debugging programming easy. देखिए इसमें मैंने जो पॉइंट्स लिखवाया है वो यही है कि जावा को जो डेवलपर है जेम्स कोसलिंग, उन्होंने इसको नाम दिया था सन माइक्रो सिस्टम 1995 पे। फिर उसके बाद ये ओरेकल कॉर्पोरेशन पे आ गया, जो पहले से ही सिंपल प्रोग्रामिंग है। इसकी जो राइटिंग है, कंपाइलिंग है, डिबगिंग है, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसे क्रिएट करने में। इसमें लिखिए इट हेल्प अस टू क्रिएट रीजनेबल कोड। इट हेल्प अस टू क्रिएट रीजनेबल कोड्स। Reasonable. Reusable, RESUABLE, reusable code and modular programs. Yes, sir. हो गया? नेक्स्ट लाइन से Yes. लिखिए, नेक्स्ट लाइन से ए जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, In general. ए जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ए जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेड Yes, फॉर sir. डेवलपर्स, मेड फॉर डेवलपर्स, मेड फॉर डेवलपर्स Yes, sir. to write once, run anywhere. To write once, run anywhere. To write once, run anywhere. That is Bora. compiled Java code. That is compiled Java code Yes, sir. can run on all platforms. Can run on all platforms Yes, sir. that supports Java. Yes, sir. आया समझ में? Yes, sir. अब Bora. लिखिए Java programming language is named Java. Why? जो मैंने आपको क्वेश्चन अभी पूछा था और मैंने उसका आंसर दिया था, वो सब इसमें आपको बताना है मुझे। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नेम्ड, NAMED, नेम्ड जावा। व्हाई? जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका नाम जावा है, वो जावा क्यों है? Because of the US. नहीं, मैं लिखवा रहा हूँ, US. लिखिए, मैं लिखवा रहा हूँ, आपको लिखिए। आफ्टर द नेम ओक, आफ्टर द नेम ओक्ड, after the name oak, the term decided to Yes, sir. हो गया? The term decided to give a new name. The term decided to give a new name to Yes, it sir. suggested To. to it and the suggested suggested words Yes, sir. were silk, comma revolutionary, were silk,
revolutionary, 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 comma DNA, After revolutionary, sir. revolutionary, comma DNA, comma dynamic, Dynamic. Yes, sir. etc. Yes, sir. These all names were easy to spell. पता है जब ओक नाम रख रहे थे तो उसके बाद इन्होंने ओक नाम तो था ही पहले, लेकिन उसके बाद इन्होंने डिसाइड करा कि हम इसको नाम को ये वाले नाम रख के देख सकते हैं। उसके बाद तो वो कुछ उन्हें ऐसा लगा ये वाले नेम से कि उनको फनी महसूस हो रहा था कि कुछ नेम ऐसे हैं जो फनी है, हमारे इसके नेम रखने के लिए फनी बन जाएंगे। तो आगे देखिए क्या लिखा आपने, these all names were Easy to spell. easy to spell Yes, sir. and fun to say, fun, fun to say, Yes, sir. but they all wanted the name to reflect, but they all wanted the name to reflect Yes, sir. the essence of technology, the essence of technology. Yes, sir. In accordance with James Gosling, in accordance with James Gosling, Yes, sir. the Java among the top names along with Silk. Java among the top names along with Silk. And since Java was a unique name, and since Java was a unique name, Yes, sir. so most of them preferred it. So most of them preferred it. Yes, sir. Next line से लिखिए, Java is the name of an island in Indonesia. Java is the name of an island in Indonesia, Yes, sir. where the first coffee named Java coffee was produced. Where the first coffee named Java coffee was produced. Yes, sir. इसलिए इसका ये नाम प्रोड्यूस, इसमें नाम दिया गया और इसका जो लोगो है वो कॉफी के उस पे आया है, इसी वजह से आया है। ठीक है, Yes, sir. ओके। मेन फीचर्स ऑफ जावा, हेडिंग डाल लीजिए, मेन फीचर्स ऑफ जावा। Yes, sir. इसमें पहला लिखिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि आप इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हो, मतलब इसका कोड जो है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल जाएगा, किसी और प्रोग्रामिंग पे भी यूज कर सकते हैं हम इसका कोड। कोड है Yes, sir. किसी भी प्रोग्रामिंग में या किसी भी सॉफ्टवेयर में यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोला गया है। ओके, Yes, yes, sir. नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Yes, sir. नेक्स्ट लिखिए सिंपल। Yes, sir. नेक्स्ट सिक्योर। Secure. सिक्योर, सिक्योर कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। जितनी भी वेबसाइट्स बनती हैं इसकी,
जितनी भी साइट्स बनती हैं वो सिक्योरिटी बेस पे बनती हैं, तो वो जावा की प्रोग्रामिंग का यूज होता है। जावा में गेम्स बनाए जाते हैं, आज के टाइम में गेम्स बन रहे हैं जावा में, और जावा में साइट्स बड़ी बड़ी जो एप्स हैं, जो गेम्स है, जो एप्स बनाए जा रहे हैं, वो इनसे इस प्रोग्रामिंग से ज्यादा यूज करके बनाए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखिए, डिस्ट्रीब्यूटेड। Yes, sir. डिस्ट्रीब्यूटेड नेक्स्ट, Distributed. मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग Yes, sir. नेक्स्ट, पोर्टेबल। Yes, sir. पोर्टेबल का मतलब यह है कि आप एक मशीन से दूसरी मशीन में कोड को ट्रांसफर कर सकते हैं और चला सकते हैं। Yes, sir. हाई परफॉर्मेंस। Performance. हाई परफॉर्मेंस। Yes, sir. नेक्स्ट, डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी। डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी। Yes, sir. नेक्स्ट, write once, run anywhere. This is the main important feature. Write once, run anywhere. Yes, sir. Yes, Next, sir. power of compilation and interpretation. Power of compilation and interpretation. Yes. आगे समझ में? Yes, sir. ओके, अब हम चलते हैं इसके प्रोग्राम्स पे। फर्स्ट प्रोग्राम आपको हम बताएंगे, इसमें किस तरीके से प्रोग्राम होता है और ये क्लास का क्या काम है, क्लास को हम क्यों यूज करते हैं, ये आपको हमें बताना है। देखिए, क्लास क्लास यहाँ क्लास का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, मैंने क्लास ले लिया और डेमो ले लिया, या मैंने क्लास का नाम डेमो ले लिया। ये लिखा हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इसके अंदर आप लिख सकते हो हेलो वर्ल्ड। अब मुझे इसके बारे में लिखवाना है आपको, ये क्लास क्या है, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होता है, और ये सारी चीजें क्या हैं, इसको स्टेटमेंट लिखवाना है इसका। ठीक है, Okay, sir. इसमें लिखिए क्लास क्या है। Yes, sir. The class contain the data. The class contains the data and method to be used. The class contains the data
and method to be used in the program. Yes, sir. Method define the behavior of the class. मेथड कौन सा होता है इसमें मालूम है आपको? Yes, sir. मेथड कौन सा होता है इसमें? मेथड मालूम है मेथड कौन सा होता है? Sir, input. नहीं, ये मेथड होता है, इसे मेथड बोलते हैं। ये तो क्लास हो गई। मैंने आपको क्या लिखवाया इसमें? द क्लास कंटेन्स द डेटा एंड द मेथड टू बी यूज्ड इन द प्रोग्राम। ये मेथड हो गया आपका। Okay, sir. ठीक है, अब मैंने आपको ये भी लिखवाया कि मेथड डिफाइन द बिहेवियर ऑफ द क्लास, यानी मेथड ये डिफाइन करेगा कि क्लास किस बिहेवियर का है। ओके, तो Okay. आगे लिखिए, क्लास डेमो हैज ओनली वन मेथड। क्लास डेमो हैज ओनली वन मेथड। Yes, sir. main in Java. Class Yes, method has only one method, main in Java. Main, M-E-I-N, main in Java. yes, sir. Okay? Yes, next लाइन में लिखिए, मतलब नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, स्टैटिक वॉइड मेन। वॉइड मेन, ये स्टैटिक वॉइड मेन है क्या, ये बताना है। Yes, sir. लिखिए, static keyword tell us, static keyword tell us Yes, sir. that this method is accessible, that this method is accessible, that this method is accessible Yes, sir. without instantiating, without instantiating, instantiating, instantiating the class, without, Slanting heading. yes, Sub after without. without instantiating, instantiating, instantiating the class. Yes. आपसे कोई पूछेगा कि इसमें स्टैटिक क्या काम करता है, स्टैटिक इसमें क्या वर्क करता है, तो आपको ये बताना है कि ये स्टैटिक कीवर्ड हमें ये बताता है कि हम अपने मेथड को एक्सेसिबल कर सकते हैं विदाउट द इंस्टेंटिएट द क्लास। मतलब इसमें अगर हम स्टैटिक लगाते हैं तो हम इसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, ऑब्जेक्ट हमारा दूसरी तरीके से बनता है, लेकिन हम एक्सेसिबल करते हैं इसको मेन मेथड में, इसलिए इसको लिखा जाता है स्टैटिक को। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट लिखिए वॉइड। वॉइड क्या होता है? वॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉइड पूछा भी जाता है कि वॉइड क्या काम करता है। ये लिखिए वॉइड, Yes, sir. इसमें लिखिए कीवर्ड्स टेल, कीवर्ड्स टेल Yes, sir. that this method will not return anything, that this method will not return anything. Keyword tell that this method will not return anything. void में क्या होता है? void इसमें empty value होती है, ये कोई चीज को रिटर्न नहीं करता। Yes, sir. चीज को रिटर्न का मतलब यह है कि void का मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, जिसमें void अगर आप यूज करते हो तो क्या उसमें इफेक्ट पड़ेगा, और अगर void नहीं यूज करती हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये मैं आपको बताऊंगा प्रोग्राम से अभी। Okay, sir. नेक्स्ट
नेक्स्ट पॉइंट लिखिए प्रिंट एल एन। प्रिंट एल एन इसमें लिखिए दिस मेथड इज जावा इज आल्सो यूज्ड टू। दिस मेथड is Java is also used to display text. Is also used to display text on the console. Display text on the console. Yes, sir. It prints the text on the console. It prints the text on the console. On the console, 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 and the cursor. Yes, sir. Moves to start of the next line. At the console. प्रिंट एलएन वर्क क्या करता है? प्रिंट एलएन का वर्क क्या है? हमारे जो वैल्यू है डिस्प्ले कराता है, वैल्यू को डिस्प्ले कराता है। ठीक है, जो हमारी प्रिंट हो जाती है टेक्स्ट वैल्यू और एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ट्रांसफर हो जाती है, वो उसका काम है प्रिंट एलएन का। ओके, यस। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए सिस्टम डॉट आउट। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन लिखते हैं ना हम, तो सिस्टम डॉट आउट क्या वर्क करता है इसमें लिखिए। Yes, sir. This is the standard output stream. This is the standard output stream that is used to produce the result of a program. That is used to produce the result of a program. On an output device, program on an output device like the computer screen. Like the computer screen. Yes, sir. इसको आप 5 मिनट रीड कर लीजिए, फिर चलते हैं हम प्रोग्रामिंग पे। 5 मिनट रीड कर लीजिए, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए आप। फिर हम चलते हैं प्रोग्राम्स बनाएंगे। सर जो मेथड होता है क्लास का, उसको क्लास नेम भी कहते हैं ना? हाँ, उसे क्लास नेम भी बोलते हैं, लेकिन अगर आपसे किसी ने ये पूछ लिया कि ये है क्या, मेथड है ये एक ही मेथड डिक्लेयर्ड होता है हमारा, एक ही मेथड बनाया जाता है और जिसकी वजह से हम क्लास का नेम देते हैं, मेंशन करते हैं। ठीक है, आप जो है ना इसके एप्लीकेशंस लिख लीजिए, जावा के एप्लीकेशंस और लिख लीजिए। ओके सर। इसमें लिख लीजिए, पहला लिख लीजिए वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन सच एज irctc.co.in, जो आपकी IRCTC साइट्स है ना जिसपे हम रिजर्वेशन करते हैं रेलवे का, वो सब जावा पे बनी हुई है। यस सर। एक्सेट्रा जावा irct.co.in यस सर। and www.passportseva.co.in, पासपोर्ट की जो साइट है ना वो भी जावा पे बनी हुई है। पासपोर्ट सेवा। हाँ, passportseva.co.in। ओके सर। नेक्स्ट गेम्स, रोबोटिक्स, स्मार्ट कार्ड, यस सर। स्मार्ट कार्ड, एम्बेडेड सिस्टम, मोबाइल, एम्बेडेड सिस्टम, मोबाइल, यस सर।
enterprise application such as banking applications. हो गया? Yes, sir. Next, desktop application such as Acrobat Reader नहीं, जिसमें हम अपनी PDF फाइल ओपन करते हैं. Adobe Reader. हाँ, Adobe Reader, Media Yes, sir. Player, Yes, sir. antivirus, etc. Yes, sir. ये सब जावा की एप्लीकेशन है. Okay, sir. ओके, Yes, sir. तो रीड कर लीजिए आप, फिर चलते हैं प्रोग्रामिंग पे इसके. सर एक प्रिंट एलन होता है और एक सिर्फ प्रिंट भी होता है ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट. हाँ, INN भी होता है, वो भी यूज होता है, लेकिन सबसे ज्यादा तो हम ये यूज करते हैं, वो रेयर केस में यूज होता है. जैसे कोई हमने बहुत ज्यादा बड़ी एप्लीकेशन बनाई ना, उसमें यूज कर लेते हैं वो, लेकिन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन का ही यूज करते हैं ज्यादातर. तो यस सर, वो हम मतलब एट में बताया गया था, पढ़ाया गया था, मतलब कि प्रिंट एलन और एक प्रिंट होता है जिससे प्रिंट एलन नेक्स्ट लाइन पे कर्सर मूव कर देता है, प्रिंट इसी लाइन में कंटिन्यू. नेक्स्ट लाइन पे ट्रांसफर कर देता है. कोई भी हम मैसेज देते हैं ना, उसको नेक्स्ट लाइन पे लेके जाता है. अगर नेक्स्ट लाइन पे नहीं लेके जाएगा तो आपका आउटपुट कैसे आएगा? यस सर. ये है ना इसमें. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज है कि आपको इसमें मालूम होना चाहिए. सबसे ज्यादा जरूर पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं. यस सर. सर हो गया, मतलब पढ़ लिए वो डाउट्स जो था पूछ लिए. अब हम इसमें आपको कराएंगे कि 2 नंबर को हम ऐड कैसे कराएं जावा के अंदर, विद द यूजर एंड विदाउट यूजर. मतलब हम यूजर के थ्रू करें या कैसे करें, ये बताएंगे हम. किस तरीके से इसमें आउटपुट आप लेके आएंगे. यस सर. इसमें अगर आप ये पूरा नंबर लिख रहे हैं ना, तो इसमें गैप मत दीजिएगा. आप गैप दे देंगे तो फिर अलग हो जाएगा ये. अगर आप जब यहाँ पर ये लिखे हैं सम ऑफ 2 नंबर, तो आपको गैप नहीं देना है. यहाँ पर गैप नहीं देते हैं इसमें. ठीक है, यस. अब देखिए. आपने यहाँ पर 2 नंबर ले लिए एंड, एक आपने नंबर ले लिया N1 10 और एंड एक ले लिया N2 9. अभी आ रहे हैं क्लास ले. N2 ले लिया हमने एक 15. ठीक है,
यहाँ पर हमने ये नंबर ले लिए हैं, उसके बाद हम यहाँ पर सम को इनिशियलाइज कराएंगे। ये सम ले लिया, तो सम इक्वल टू n1 प्लस n2 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और इसको प्रिंट करा देंगे हम यहाँ पर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर हम n1 की वैल्यू 10 दे दी है, n2 की वैल्यू 15 दे दी है, और यहाँ सम ले लिया, तो सम इक्वल टू n1 प्लस n2। और ये n1 प्लस n2, मैं इसको n1 n2 लिख सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या करा, रिजल्ट दे दिया, सम इक्वल टू n1 प्लस सम n2। से initialize। उसके बाद यहाँ सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर्स इज प्लस सम। यहाँ डायरेक्टली आपने सम प्रिंट करा दिया, अब यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाएगी, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 25। ओके, यस सर। ये तो आपका था इनिशियलाइज, यानी आप अपने पास से वैल्यू दे रहे हो, जब जाके ये नंबर्स आपके मिल रहे हैं। अगर आप इसको विदाउट यूजर के मेथड का यूज करके दें, विदाउट यूजर के करें, तो कैसे होगा? इनपुट करके। ये देख लीजिए, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हम क्लास का नेम ले लेंगे, सम ऑफ नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर मेन मेथड डिक्लेयर कर देंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। उसके बाद यहाँ पर आप वैल्यू किस तरीके से देंगे, 8, 5 एंड 10। एक स्कैनर क्लास होती है, उसको हम यहाँ पहले ही इनपुट करा देंगे, यहाँ लिख देंगे इम्पोर्ट java.util.scanner डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। क्लियर है पॉइंट? यस सर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ ये आपका ये आ गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, स्कैनर obj dot scanner obj new scanner dot system dot in सिस्टम डॉट इन। सर स्कैनर के बगल में sc होगा कि obj होगा? जो आप लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं, ये इससे भी चल जाएगा। ये स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर। sc क्या है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, स्कैनर एक क्लास है। ठीक, हमने उसको यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया सिस्टम डॉट इन से। नहीं, वो हम लोग के स्कूल में वो स्कैनर obj होता है, तो obj ही हमको आ रहा है। तो वो हम लोग में जो आप sc लिखे हैं वो obj ही होता है, तो obj से हम करेंगे तो दिक्कत नहीं है। आप ओबीजी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, उसके बाद x इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। ऐसे कराया था आपको? यस सर, यस सर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद दूसरी वैल्यू लेनी है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, प्रिंट ln एंटर द सेकंड नंबर। ओके, उसके बाद आपको लिखना है इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। उसके बाद
system.out.println the sum of two number x and y is, यहाँ पर आप क्या इनिशियलाइज कर देंगे वैल्यूज को, सम, हाँ, प्लस इसको बंद कर देंगे प्लस सम, और ये आपका प्रोग्राम बन के तैयार हो गया। अब इसको क्या करेंगे आप, इसको आप मेन मेथड में डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, ये आप बना सकते हैं क्योंकि हमने ये यूजर इनपुट की वैल्यू ली है, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, फिर इसको हमने यहाँ इनिशियलाइज कर दिया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर वैल्यूज को ले लिया, ये वाली जो वैल्यू है हमने यहाँ पर इसको प्रिंट करा दिया। क्लियर? यस सर। इसमें जो एक्स और वाई जो हम लोग लिए हैं सर, ये प्रिंटिंग करवाने से पहले हम लोग उसको सम इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई करके भी तो कर सकते थे। हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा, जिस तरीके से आप ले सकते हो उस तरीके से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमने एक्स वाई दिया है ना, इसलिए मैंने एक्स वाई यहाँ लिया है। ठीक है, हाँ वही तो, मतलब जो आप लास्ट में जो सम वैसे निकाले हैं वो वॉइड वाला, हाँ हाँ, तो वो वाला हम ना करके सीधे डायरेक्टली प्रिंटिंग करने से पहले सम इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। दिया है ना, इंट ए इक्वल टू इंट ए और इंट बी, हमने ये दो पैरामीटर दे दिए इंटीजर टाइप के, तो फिर उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पर a प्लस बी, और फिर उसका रिटर्न कर दिया, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। जो हम फर्स्ट नंबर डालेंगे, सेकंड नंबर डालेंगे, वो यहाँ से ले लेगा वैल्यूज। क्लियर है? ओके यस सर। ये था आपका। ठीक है, इसको आप अच्छे से कर लेना। कल मैं इसी के और नेक्स्ट एग्जांपल दूंगा, जो आपके आउटपुट निकालने के, यानी दो नंबर को ऐड और किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक ओके है, सर। ओके। इफ एनी डाउट regarding this program, so asking me. Yes. यस सर। सर प्रोग्राम में तो डाउट नहीं है, पर सर स्ट्रिंग आर्ग्स का वो क्या होता है, मतलब सब स्टैटिक वॉइड में ये सब का तो हो गया, पर स्ट्रिंग आर्ग्स का फंक्शन। स्ट्रिंग आर्ग्स, ARGS। स्ट्रिंग आर्क्स, स्ट्रिंग आर्क्स इसलिए है क्योंकि हम बेसिकली यहाँ पर क्या रखते हैं, सब बेसिकली हम रखते क्या है, सब स्ट्रिंग वैल्यूज तो रखते हैं हम। यस सर। आर्गुमेंट देते नहीं देते, तो स्ट्रिंग आर्ग्स नहीं लेते हैं। अब हम यहाँ इंट लगा देंगे तो इंट नहीं लेगा, क्योंकि हम वैल्यू स्ट्रिंग की लिखते हैं ना इसके अंदर, इसलिए हम स्ट्रिंग आर्ग का यूज करते हैं। ओके सर। क्लियर है या और बताऊं अभी आपको? नहीं सर, हो गया। अगर कोई डाउट है तो पूछिए। स्ट्रिंग आर्ग असल में क्या होता है कि एक सीक्वेंस होता है कैरेक्टर का, जो पास करता है मेन फंक्शन में। ये याद रखो बस, मेन फंक्शन में पास करता है वैल्यूज को। ओके ओके सर। ओके, क्लोज करते हैं हम यहीं पर ही क्लास को। ठीक है, ओके सर। यस सर।